Hello students, how are you? I hope you feel fine. Student, today we are going to discuss some numerical of chapter work, energy and power. So now let us see first question. A body of mass 4 kg initially at rest is subjected to a force 60 Newton. What is the kinetic energy required by body at the end of 10 seconds? It means कि एक बॉडी जो है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, वेट सॉरी मास 4 kg गिवन है, उस पर 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट करते हैं, तो कह रहे हैं कि उसको 10 सेकंड के एंड पे अगर उसको हम क्या करते हैं 60 न्यूटन का फोर्स अगर 10 सेकंड तक अप्लाई करते हैं तो 10 सेकंड के एंड पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. ठीक है. सो नाउ वी हैव गिवन द मास m is equal to 4 kg and force F is equal to 16 Newton. Then acceleration F is equal to ma and a is equal to F upon m. So now F 16 by 4 is equal to 4 meter per second square. Acceleration हो जाएगा. Then the velocity after 10 second. 10 second में उसकी velocity कितना होगा? v is equal to u plus at. So now u is equal to initially 0 है, रेस्ट पे है, initially u velocity is 0 and a is equal to 4 into t is equal to 10, that is equal to 40 meter per second. Then kinetic energy of body is equal to k is equal to half of mv square, then 1 by half m is 4 into 40 into 40. ठीक है. 2 से इसको डिवाइड करें 2 4 4 जो 16 16 टू जा 32 100 जूल. ठीक है. तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है 3200 जूल. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the linear momentum of a body increased by 20%, what will be the percentage increase in kinetic energy of the body? मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को अगर 20% इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो आपको बताना है. सो नाउ लेट अस सी. वी हैव गिवन लेट इनिशियल मोमेंटम is equal to p. Let us suppose the initial momentum of the body is p and final momentum p dash is equal to final momentum कितना होगा? जितना मोमेंटम है उस मोमेंटम में भी हम 20% क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. अगर 20% इंक्रीज करें देन p plus 20% of p. p तो है ऑलरेडी एंड उसके बाद भी p में 20% हम क्या करें? इंक्रीज करते हैं. p plus 20% of p and then we have given that p plus p का 20% that is p into 20 by 100 डिवाइड करेंगे तो 5. तो 5 की p से मल्टीप्लाई करेंगे 5p plus 1 that is 6p by 5 that is p dash. And initial kinetic energy of body k is equal to what? Be noted the relation between the kinetic energy and momentum, that is p square by 12. This is the initial kinetic energy and final kinetic energy. Then final kinetic energy that is k dash is equal to कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body. So final kinetic energy is p dash का square by 12 and p dash is equal to 6p, तो 6p by 5 का square by 2n and ये जो 36p by 5 का square 25 into 2 50 that is k dash. Change in kinetic energy, change in kinetic energy
इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। सो नाउ वी हैव 36 p by 50 m minus m k is equal to what? सॉरी इस p का स्क्वायर है इनका p स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर by 2m। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 50m, 56 को डिवाइड करेंगे 1 दैट इज 36 p स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 देन 25 p स्क्वायर। तो 36 में से 25 को माइनस करेंगे एंड वी गेट, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 11 p स्क्वायर, तो ये आपका 11 p स्क्वायर बाय 30 एंड दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन द परसेंटेज चेंज, ठीक है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करके 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ डेल्टा के इज 11 p स्क्वायर बाय 50 30 नहीं 50 m into 100 divided by k is equal to initial kinetic energy that is p square by 12, p square by 2m, 2 से m से m कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 11 into 1000 into 2 divided by 50 इसको डिवाइड करेंगे 2 2 to 4 4 into 11 that is 44%। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आपका 44% का चेंज आएगा। कितना आएगा 44 का चेंज आएगा। क्लियर? मतलब अगर 20% काइनेटिक 20% अगर मोमेंटम चेंज करते हैं तो 44% जो है आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। So now next question, a vehicles of mass 15 quintal climbs up a hill 200 meter high. It then moves on a level road with a speed of 30 meter per second. Calculate the potential energy gained by it and its total mechanical energy while running on the top of the hill. देखिए टॉप ऑफ द हिल पे पहले उसके एक साइकिल को जिसकी वेट जो है 15 क्विंटल है उसको क्लाइंब किया जाता है एक हिल पे जिसकी हाइट है 200 मीटर एंड उसके बाद उसके जैसे हिल पे हम उसको क्लाइंब कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रोड पे उसको 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम उसको मूव करते हैं। तो उसके पास टोटल कितना काइनेटिक एनर्जी है एंड कितना पोटेंशियल एनर्जी है। सो नाउ वी हैव गिवन m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 15 क्विंटल दैट इज 15 into 100 इज इक्वल टू 1500 kg। 1 क्विंटल में 100 kg होता है तो 100 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड हाइट इज इक्वल टू 200 मीटर एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू mg h m is equal to 15 into 10 to the power 2 into g 10 into h 2 into 10 to the power 2। 15 to the 30 into 10 to the power 2 plus 1 plus 2 that is 5 जूल। ये हम इसको ले सकते हैं 3 into 10 to the power 6 जूल। This is the potential energy of the cycle and second the kinetic energy K is equal to what? K is equal to half of mv square. So now half of m 1500 into v is equal to given as 30 meter per second, 30 meter per second, क्या 30 into 30। ठीक हो गया? देखिए इसको डिवाइड करें 15 जो 225 into 3 into 10 to the power 3 1 2 3 तो 10 to the power 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो 5 6 and 7 6 1 7 and 6 into 10 to the power 3। तो इसको हम लिखेंगे 0.675 into 10 to the power 6 जूल। So now the total mechanical energy
मैकेनिकल एनर्जी of the system, that is U plus K, total potential energy plus total kinetic energy. Total potential energy, that is 3 into 10 to the power 6 plus 0.675 into 10 to the power 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 3.675 into 10 to the power 6 जूल आ जाएगा. So this is the total mechanical. तो मैकेनिकल जो एनर्जी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. Is it clear? So now next calculate the velocity of the bob of a single pendulum at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter. Take g is equal to 9.8. देखिए एक बॉब पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, सॉरी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. अगर उसकी पोजीशन जो है उसके मेन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर हाइट पर है. कितना है? 10 सेंटीमीटर हाइट पर. तो मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितना है? लेट अस सपोज वी हैव गिवन इट वन ऑफ पेंडुलम, ये इसका मेन पोजीशन है. मेन पोजीशन से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है इस पोजीशन में, तो दैट इज हाइट ऑफ पेंडुलम, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो देखिए अब इस सिचुएशन में जो इस पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कोई सम हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ से रिटर्न आएगा, तो इस पोजीशन में ये पूरा का पूरा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें काइनेटिक एनर्जी. मतलब एट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन या बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा. एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mg h, m से m कैंसिल हो जाएगा. देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h एंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g h. तो रूट ऑफ 2 इनटू g, g 9.8 इनटू h इज इक्वल टू 10 इनटू 10 टू द पावर माइनस, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखा है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 टू माइनस 2. इज इट क्लियर? तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 टू जा 98 6 9 9 टू जा 18 प्लस 1 96 इनटू 10 टू द माइनस 2. तो 96 का स्क्वायर 14 इनटू 10 टू द माइनस 1, दैट इज 1.4 इनटू 1.4 मीटर पर सेकंड. देखिए 9.8 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा. एंड 196 का स्क्वायर होता है आपका 14 एंड 14 एंड 10 टू माइनस 2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 10 टू माइनस 1 आएगा. एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 मीटर पर सेकंड. इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाई must a body be lifted to gain an amount of potential energy equal to the kinetic energy it has when moving at a speed of 20 meter per second. The value of acceleration due to gravity at place is g is equal to 9.8 meter per second. 9.8 meter per second. देखिए क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी को कितने हाइट पे हम उसको रेस करें ताकि उसे पोटेंशियल, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए. किसके? जब किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया जाता है. तो जब बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. किसी बॉडी को सर्टेन हाइट पे अगर उसको रेज करेंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन potential energy is equal to kinetic energy and potential energy is equal to mgs and kinetic energy is equal to half of mv square. m से m cancel, then यहाँ से h निकालना तो h is equal to v square by 2g and v is what? v is equal to v is equal to 20 meter per second. 20 into 20 by 2 into g. 9.8 लेने के लिए क्या 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 मीटर. ठीक है, मतलब उसको अप्रॉक्स 20 मीटर हाइट पे हमें क्या करना है, रेज करना होगा. तो
आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। एंड अगर फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चंस में, आप कमेंट सेक्शन